क्वेश्चन बोल रहा है अपने को 6th क्वेश्चन कि QT is the bisector of angle PQR and TR is the bisector of angle PRS. Prove that QTR equal to half angle QPR. तो देख लीजिए मैं फर्स्ट ट्रेंगल PQR एंड दिस इज S. फर्स्ट में ट्रेंगल PQR बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है एंगल PRS इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल होता है द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. तो एंगल PQR प्लस में एंगल QPR. एंगल PRS RTR is the bisector of angle PRS. Their both part will be equal. तो PRS को मिलेगा 2 एंगल TRS लिख दिया. एंड QT is the bisector of angle PQR. Therefore PQR को 2 एंगल TQR प्लस में एंगल QPR. तो TRS इक्वल टू 2 एंगल TQR अपॉन में 2 प्लस में एंगल QPR अपॉन में 2. 2 से 2 कैंसिल. तो एंगल TRS इक्वल टू एंगल TQR प्लस हाफ एंगल QPR. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब मैं ट्रेंगल TQR एंड S इसमें भी मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा रहा हूं. ट्रेंगल TQR बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. तो एंगल TRS इक्वल टू एंगल TQR प्लस में एंगल QTR. इक्वेशन नंबर 2. कंपेयर बोथ टू इक्वेशन बाय 1 and 2. Both equation the left hand side will be equal. Angle TRS equal to angle TRS. Therefore angle TQR plus में half angle QPR equal to angle TQR plus में angle QTR. TQR से TQR cancel. Half angle QPR equal to angle QTR. वापस देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को TQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड TR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS. फर्स्ट एंड प्रूव दैट एंगल QTR इक्वल टू हाफ एंगल QPR. फर्स्ट वी हैव टू यूज बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इन ट्रायंगल PQR. Therefore angle PRS equal to angle PQR plus में angle QPR. QT is the bisector of angle PQR. Therefore both parts will be equal. तो PQR equal to TQR लिख सकते हैं. तो मैंने PQR की जगह दिया 2 TQR. ऐसी both part will be equal. Therefore angle PRS equal to 2 angle TRS. 2 मैंने डिवाइड में पूछा दिया, यहाँ कट गया और यहाँ हो गया हाफ एंगल PQR. Again we use triangle TQR by using exterior angle theorem. Therefore TRS equal to TQR plus में QTR. Compare both two equation. TRS and TRS both are equal. Therefore right hand side is also equal. TQR से TQR cancel. यही अपने को प्रूफ करना. थैंक यू. B, A, B and C and D and 50 degree X and Y 130 degree. Find the value of X and Y. Find X and Y and prove that AB parallel to CD. देख लीजिए हमें फाइंड करना है x एंड y एंड प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD. देख लीजिए x प्लस 50
is equal to 180 degree by linear pair. वापस अगेन x plus 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, देयरफॉर बाय लीनियर पेयर तो x की वैल्यू आई 180 माइनस 50, x इज इक्वल टू 130 डिग्री. अगेन y इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. x plus 50 is equal to 180 degree by linear pair and y equal to 130 degree vertically opposite angle. X and y both are equal. X and y both are equal. Therefore, alternate interior angles are equal. Therefore, lines are parallel. Therefore, AB parallel to CD. Find x and y. Again show that AB parallel to CD. X plus 50 is equal to 180 degree by linear pair. Find the value of x. X is equal to 130 degree. Y equal to 130 degree by vertically opposite angle. X and y both are equal. Both will be 130 degree. So therefore alternate interior angles are equal. Therefore lines are parallel. Next question देख लीजिए. Second question. Second diagram देखो. AB parallel to CD. And CD parallel to EF. AB parallel to CD and CD parallel to EF. Y ratio Z equal to 3:7. Find X. Transversal line, that is X, Y and Z. देखो ये आपका y है तो ये भी क्या होगा y. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वापस देख लीजिए y, दैट इज y. देखो CD पैरेलल टू EF. CD पैरेलल टू EF. इन द पैरेलल लाइन a transversal intersect. Therefore the sum of the interior angle in the same side is supplementary. The sum of the y plus z is equal to 180 degree. पैरेलल लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन AB पैरेलल टू CD. Therefore sum of the angle 1 and angle 2 will be 180 degree. Okay. तो y plus z equal to 180 degree. Y will be y ratio z is equal to 3:7. तो y इक्वल टू 3 के, z इक्वल टू 7 के. तो देयरफॉर 3k प्लस 7k इक्वल टू 180 डिग्री. 7 प्लस 3 10k इक्वल टू 180. k इक्वल टू 180 अपॉन 10. k की वैल्यू आ गई 18. वापस देख लिए y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री. 3k प्लस 7k इक्वल टू 180. 10k इक्वल टू 180. k की वैल्यू 18. देयरफॉर y इक्वल टू 3k. तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 18. तो y इज इक्वल टू 54. एंड z इक्वल टू 7k. 7 इंटू 18. तो z इज इक्वल टू 126 डिग्री. एंड AB parallel to CD and CD parallel to EF. Therefore AB parallel to EF. AB CD के parallel, CD EF के parallel. तो therefore AB and EF both are parallel. Therefore X is equal to Z. Therefore
alternate interior angles. AB parallel to EF, therefore x is equal to Z, तो x equal to 126 डिग्री. ओके, बिल्कुल सिंपल था. AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF. अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है. y रेशो z इज इक्वल टू 3:7. y देयरफॉर ये y हो जाएगा. पैरेलल लाइन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन द सेम लाइन इज भी सप्लीमेंट्री, तो y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री. y इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू 7k, तो y इक्वल टू 54 आया, z इज इक्वल टू 126. and AB parallel to CD, CD parallel to EF, therefore AB parallel to EF, therefore x is equal to Z, alternate interior angles are equal, x will be 120, x equal to Z equal to 126 degree, therefore x is also 126 degree. Next question देख लीजिए. Third question. A, B, C, D, G, F, E, AB parallel to CD and EF perpendicular to CD and angle ZED equal to 126 degree. Find angle AGE, angle GEF and angle FGE. ठीक है. AB parallel to CD, that is 90 degree. Therefore, this is also 90 degree. Alternate interior angles are equal. GED will be 126 degree. Find AGE. AGE. AB parallel to CD. Therefore, angle AGE equal to angle GED by alternate interior angle. Therefore, angle AGE equal to 126 degree. AGE and GED both are equal alternate interior angle. Therefore, that is 126 degree. Find हो गया. GEF, 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 that is 90 degree. तो एंगल GEF इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90. वापस देख लीजिए, दैट इज 126 डिग्री, दैट इज 90. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये वाला 126 माइनस 90, तो एंगल GEF इक्वल टू 36 डिग्री. अब अपना फाइंड करना FGE. FGE, FGE देख लीजिए, ये कितना है अपना 126 डिग्री. तो FGE इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री बाय लीनियर पेयर. वापस समझ लीजिए, दैट इज 126 डिग्री. तो ये लीनियर पेयर से क्या निकलेगा 180 माइनस 126. FGE इक्वल टू 54 डिग्री. ओके, बिल्कुल सिंपल था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. फोर्थ क्वेश्चन. P, Q, R, S एंड T, ये 110 डिग्री एंड दिस इज 130 डिग्री. दिया अपने को PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQ
R equal to 110 degree. Angle RST equal to 130 degree. Find angle QRS. Angle PQR equal to 110 degree. RST will be 130 degree. Find the angle of QRS. Draw a line LM. Draw a line LM parallel to PQ, parallel to ST. हमने एक लाइन खींची LM पैरेलल टू PQ एंड पैरेलल टू ST. तो देयरफॉर PQ पैरेलल टू LM है, सिंस PQ पैरेलल टू LM, देयरफॉर PQ पैरेलल टू LR. PQ पैरेलल टू LR, दैट इज X एंड Y. अभी बताया मैंने कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड इज सप्लीमेंट्री. तो 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो x विल बी 70 डिग्री. LM पैरेलल टू ST, देयरफॉर LM पैरेलल टू RM पैरेलल टू ST हो जाएगा. सेम कंडीशन, द सम ऑफ द बोथ पेयर ऑफ द एंगल विल बी सप्लीमेंट्री 180 डिग्री. देयरफॉर y प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो y इक्वल टू 180 माइनस 130, तो y इक्वल टू 50 डिग्री. x and y both are find the angle of QRS. तो by angle sum property of triangle, angle QRS equal to the sum of the both three angles will be 180 degree. तो 180 minus x plus y, 180 degree minus x plus y. तो एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50. तो एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. तो एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री. हमने कंस्ट्रक्शन किया, बिना कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा. कंस्ट्रक्शन किया अपन ने PQ पैरेलल टू LM एंड PQ पैरेलल टू ST. तो PQ पैरेलल टू LM, देयरफॉर PQ पैरेलल टू LR. द सम ऑफ द बोथ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 70. सेम कंडीशन, ST पैरेलल टू RM, द सम ऑफ द बोथ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल y विल बी 50. द सम ऑफ द थ्री angles, because linear pair x plus y plus angle QRS is equal to 180 degree. तो find the angle of QRS. We find the angle of QRS. QRS will be 60 degree. Next question देख लीजिए. Fifth question. A, B, C, D, P, Q, R 50 degree, Y, X 127 डिग्री. अपने दिया है AB पैरेलल टू CD, एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल PRD इक्वल टू 127 डिग्री. फाइंड X एंड Y. AB पैरेलल टू CD,
देयरफॉर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, y प्लस 50 इक्वल टू 127 डिग्री. AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर बाय अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल y प्लस 50 इक्वल टू 127 डिग्री. तो y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50, तो y इक्वल टू 77 डिग्री. AB पैरेलल टू CD, therefore x इक्वल टू 50 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. AB पैरेलल टू CD, तो 50 प्लस y इक्वल टू 127 डिग्री, एंड AB प्लस पैरेलल टू CD, तो x इक्वल टू 50 एंड 50 प्लस y इक्वल टू 127. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 77 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन अपना है. इफ द गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर, PQ and RS are two mirror, AB is transversal ray, incidence ray, and BC is reflected ray. A, B, C and D. देखो PQ and RS both are parallel mirror. Okay, both are parallel mirror. Prove that and AB is incident ray, BC is reflected ray. समझ लेना थोड़ा ध्यान से. BC is incident ray भी है and CD is reflected ray. AB is incident ray, BC reflected, BC incident. देखो AB is incident ray mirror PQ, BC is reflected ray mirror PQ. BC is incident ray mirror RS and RS CD is reflected ray mirror RS. Prove that AB parallel to CD. देखो BL and CM both are normal. आप लोगों ने साइंस में पढ़ा, जब भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे होती है तो उनके बीच में नॉर्मल बनता है, और नॉर्मल होता हमेशा मिरर पर परपेंडिकुलर. लिख देना BL एंड CM बोथ आर नॉर्मल. नॉर्मल इसलिए होता है कि क्योंकि यहां से जो भी इंसिडेंट होते हैं रे, तो उनके बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोथ आर इक्वल. तो देयरफॉर BL एंड CM बोथ आर नॉर्मल. तो देयरफॉर ऑल नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू द मिरर. जब परपेंडिकुलर मिरर पे हो गया तो ये 90 डिग्री एंगल हो, देयरफॉर BL पैरेलल टू हो जाएंगे CM. BL पैरेलल टू CM. अब वी नो दैट बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ
incidence is equal to angle of reflection. Law of reflection will be angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. That is 1, 2, 3 and 4. Therefore, angle 1 equal to angle 2 equation number first, angle 3 equal to angle 4 equation number second. BL parallel to CM. So therefore, angle 2 equal to angle 3 by alternate interior angle. Equation number 3. By equation 1, 2 and 3. 1 equal to 2, 2 equal to 3, 3 equal to 4. Therefore, angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4. All 4 angles will be equal. Therefore, angle ABC equal to angle BCD. Therefore, angle ABC equal to angle BCD. Therefore, alternate interior angles are equal. Therefore, lines are parallel. Therefore, AB parallel to CD. Again, 1, 2, 3 and 4 all angles will be equal. Therefore, this angle equal to this angle. Therefore, alternate interior angles are equal. Therefore, lines will be parallel. Therefore, AB parallel to CD. Okay. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 6.3. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. That is P, Q, R, ये T and S 135 डिग्री 110 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू. पी आर क्यू फाइंड करना है. पी आर क्यू बिल्कुल सिंपल. देखो ध्यान से ना, हमने इसको x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया. देखो x प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. तो x इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री. तो x इक्वल टू 45 डिग्री. सेम कंडीशन y प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. तो y इक्वल टू 180 माइनस 110, तो y इक्वल टू 70 डिग्री. ट्रायंगल PQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. देयरफॉर x प्लस y प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू 45 प्लस y की वैल्यू 70 प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री. तो एन 125 प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री. मार लगी बाई जी मैडम. तो एंगल PRQ इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री. तो एंगल PRQ इक्वल टू
55 डिग्री। वापस देख लीजिए, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। हमने इसको x माना, इसको y माना। सपोज दिस एंगल विल बी x एंड y। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय लीनियर पेयर, सेकेंड अगेन बाय लीनियर पेयर वी फाइंड y, and the triangle PQR by angle sum property we find angle PRQ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये 1115 है, 7 8 10 11, या 115 हो जाएगा, therefore this is 65 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन। x y z o 62 डिग्री, 54 डिग्री, x will be 62 degree, angle YO ZO are bisector, YO and ZO are bisector। Find the angle OZY and angle YOZ। OZY and YOZ। First we find the triangle XYZ by angle sum property of triangle, angle X plus angle Y plus angle Z equal to 180 degree। Therefore 62 plus 54 plus angle Z equal to 180 degree। 116 प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 116, तो एंगल Z इक्वल टू 64 डिग्री। ओके, तो एंगल Z विल बी 64 डिग्री। फाइंड एंगल OZY and YOZ। तो OZY, तो ZO are bisector of angle Z। ZO are the bisector of angle Z, therefore angle OZY equal to 64 upon में 2 is equal to 32 डिग्री। Bisector means 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 64 का हाफ 32 डिग्री एंड 54 का हाफ 27 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर अपने को फाइंड करना एंगल YOZ। तो एंगल YOZ, तो ट्रायंगल YOZ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल y अपॉन में, देखो इससे लिखना बेटा आपको, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। OYZ मीन्स एंगल y अपॉन में 2, OZY मीन्स एंगल z अपॉन में 2 प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। 54 अपॉन में 2 प्लस 64 अपॉन में 2 प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। तो 27 प्लस 32 प्लस YOZ इक्वल टू 180 डिग्री, तो YOZ इक्वल टू 180 माइनस, तो एंगल YOZ इक्वल टू
121 डिग्री। वापस समझ लीजिए, फर्स्ट वी फाइंड द एंगल Z, therefore angle YZ OZY is equal to half angle Z will be 32 degree, and we find the angle YOZ is equal to 121 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है AB CDE 35 डिग्री 53 डिग्री दिया हुआ AB पैरेलल टू DE, एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल CDE इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड एंगल DCE, फाइंड एंगल DCE। देखो AB पैरेलल टू DE, देयरफॉर दैट इज 35 डिग्री, इसको हम x मान लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 35 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रायंगल DCE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, all three angles will be 180 degree। तो 53 प्लस x प्लस एंगल DCE, 53 प्लस x प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। 53 x की वैल्यू 35 प्लस DCE इक्वल टू 180 डिग्री, 88 प्लस DCE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DCE इक्वल टू 180 माइनस 88, तो एंगल DCE इक्वल टू 92 डिग्री। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ, PRTSQ 95 40 डिग्री 75 डिग्री। फाइंड द एंगल SQT, ये फाइंड करना एंगल SQT। अब देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट वी फाइंड दिस एंगल इज x एंड दिस इज आल्सो x, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देख लीजिए, ट्रायंगल PRT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो x प्लस 95 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 135 45 डिग्री। ओके, ट्रायंगल STQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 75 प्लस x प्लस एंगल SQT 180 डिग्री। 75 plus x will be 45 plus SQT equal to 180 degree. 120 plus SQT equal to 180 degree. तो एंगल SQT equal to 180 minus 120 डिग्री,
तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये फाइंड किया, इससे ये निकल गया और इससे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन,